to my YouTube channel. Today I will teach you chapter 8, how do organisms reproduce of science. Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. Unlike the essential life process such as nutrition, respiration, or excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So, why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answer in the classroom. Do organisms create exact copies of themselves? Organisms look similar because their body design are similar. ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइन एक जैसे होते हैं. If the body design are so similar, the blueprints for this design should be similar. अगर उनकी बॉडी सेम होती तो उनका पूरा स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा होगा. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of body design. तो रिप्रोडक्शन वही चीज़ करता है, एक कॉपी टू कॉपी बनाता है बॉडी डिज़ाइन. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. The DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. If the information is changed, different proteins will be made. Different food proteins will eventually lead to already body design. मतलब आपने क्लास 9th में जो पढ़ा था कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन इनहेरिट करता है और डीएनए कॉपिंग होती है. मतलब deoxyribonucleic acid molecules. The DNA in the cell nucleus is information source of making protein. मतलब डीएनए जो होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए प्रोटीन बनाता है. वो इंफॉर्मेशन सोर्स से प्रोटीन बनाता है. The importance of variation. Population of organisms fill well-defined place or niche in the ecosystem using their abilities to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design. Features that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to stability of population of species. Modes of reproduction used by a single organism. Activity 8.1. Dissolved about 10 gram of sugar in 100 ml of water. एक बीकर में 100 ml पानी लीजिए और उसमें 10 ग्राम शुगर डालिए. टेक 20 ml of solution in a test tube and add a pinch of yeast. वो उसका 20 ml सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और ये उसके अंदर यीस्ट डालिए. Put a cotton plug on the mouth of test tube and keep it in a
वार्म प्लेस। वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉटन का प्लग लगा दीजिए, मतलब स्टॉपर, और उसको एक गर्म जगह पे रखिए। After 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide. उसके 1-2 घंटे के बाद वो जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें से ड्रॉपर के थ्रू 1-2 बूंद एक कवर स्लाइड पे लीजिए और उससे कवर स्लिप को उस पे कवर स्लिप ढक के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे कि जो यीस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो होती जाएगी, क्योंकि यीस्ट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस, ये एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ये पानी है। अब उसके अंदर हम शुगर डालेंगे 10 ग्राम। ये जो डॉट है वो शुगर है। ये 10 ग्राम ली और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसके अंदर का 20 ml एक टेस्ट ट्यूब में लिया। एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर 20 ml सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन। ये जो रेड कलर है वो शुगर सॉल्यूशन है। अब उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दो, मतलब एक कॉटन का स्टॉपर, जिससे एयर अंदर या बाहर ना आ सके। अब इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए सनलाइट पे रख दीजिए। सनलाइट पे और उसमें से एक स्मॉल ड्रॉप ये जो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए जो स्लिप आती है उस पर डालिए। उसके ऊपर कवर स्लिप से ढक दीजिए पर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये यीस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो ये था हमारा एक्टिविटी 8.1। एक्टिविटी 8.2, wet a slice of a bread and keep it in a cool, moist and dark place. Observe the surface of a slice with a magnifying glass. Record your observation for a week. एक ब्रेड लीजिए, उसको हल्का सा गीला कर दो। अब इसको एक कूल, ड्राई और मॉइस्ट प्लेस पे रखो। फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक उसमें से थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, तो आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये जो रेड कलर है वो वो अलग कलर का होगा। यहाँ पे मैंने रेड कलर का दिखाया है, वहाँ पे ये जो डॉट्स है वैसे ही ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर का कवरिंग आ जाएगा। तो वो सब क्या दिखाता है कि फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट
और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ये सब क्या है? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से अलग अलग चीज़ें अलग अलग मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनना एक सिंगल से। Compare and contrast the ways in which yeast grows in the first case and how much grows in the second. Having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce. The mode by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. So, our first process is फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? तो एक सेल में से दो अलग अलग सेल बन जाना, वो होता है फ्यूजन। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है बाइनरी फ्यूजन ऑफ एमोइबा, मतलब एक एमोइबा में से कैसे दो एमोइबा बन गए वो। बाद में बाइनरी फ्यूजन ऑफ लेशमनिया, ये एक लेशमनिया में से कैसे दो लेशमनिया बनी। तो ये है फ्यूजन। सो लेट हम पढ़ते हैं। फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, splitting of the two cells during the division can take place in any plane. मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन, फ्यूजन ये सब भी होता है फॉर न्यू इंडिविजुअल। मतलब नया न्यू इंडिविजुअल के लिए सेल डिवीजन और फ्यूजन ही होगा। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। मतलब फ्यूजन की बहुत सारी अलग अलग पैटर्न्स होती है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ। बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वो अपने आप को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के द्वारा। इन ऑर्गेनिज्म सच एस एमोइबा द स्प्लिट ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीज़न कैन टेक प्लेस इन एनी टाइम। और एमोइबा नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी अपने मतलब एक सेल में से दो सेल बना सकता है कभी भी। एक्टिविटी 8.3 ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ एमोइबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक परमानेंट स्लाइड होती है एमोइबा की, आपको कोई भी लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा। Similarly, observe another permanent slide of amoeba showing binary fusion. एक अमोइबा की स्लाइड देखो और एक बाइनरी फ्यूजन अमोइबा का बाइनरी फ्यूजन की स्लाइड देखो और दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या पता चलता है कि जो अमोइबा होता है वो सिंगल होता है और बाइनरी फ्यूजन जब करता है तब वो एक से दो होते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 8.3। However, some unicellular organisms shows somewhat more organisms of their bodies, such as is seen in Leishmania, which cause काला अज़र। ये लेशमेनिया हमें काला अज़र कॉज करता है। which have a whip-like structure at one end of the cell. उसके पास एक whip जैसा स्ट्रक्चर होता है एक साइड पे। In such organism, binary fusion occurs in definite orientation in related to this structure. Other single cell organisms such as malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. मतलब जो ये अमोइबा हुआ और लीशमेनिया हुआ वो सब जो एक से डबल ही होते थे वो बाइनरी फ्यूजन था। और जो ये प्लाज्मोडियम है और वो सब ऐसे है तो वो एक से
बहुत सारे एक टाइम पे हो जाते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। Yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further, as we saw in activity 1.8.1. Yeast ferm- let's us say second process, fermentation. Activity 8.4. Collect water from lake, pond that appears dark green and contains filamentous structure. लेक या पॉन्ड से थोड़ा डार्क ग्रीन टाइप स्ट्रक्चर जैसा डार्क ग्रीन टाइप का जो वाटर होता है वो लेके आइए। पुट 1 और 2 फिलामेंट ऑन स्लाइड, मतलब उसमें से एक के 2 ड्रॉप्स स्लाइड पे रखिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दिस फिलामेंट, अब एक ड्रॉप ग्लिसरीन का डालिए उस फिलामेंट्स पे। एंड कवर इट विद अ कवर स्लिप, और उसको कवर स्लिप से कवर कर दीजिए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, अब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन स्पायरोगायरा फिलामेंट, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पायरोगायरा के फिलामेंट्स? तो हाँ, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल ब्लड ऑर्गेनिज्म simple body organisms, simple reproductive method can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individual. Can we work out the reason for this based on what the activity 8.4 we see in activity 8.4? सो गाइस, हमारा ये तीसरा टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन कैसे होता है? तो कोई भी एक ये एक प्लेनेरिया करके एक ऑर्गेनिज्म है। उसको अगर आप ऐसे 3 हिस्सों में काट दो तो वो अलग अलग हिस्से से ग्रो कर सकता है। मतलब एक 3 हिस्से में टूट गया तो सर के नीचे का पूरा टेल और बीच वाला पीस निकलेगा। बीच वाले पीस से सर और टेल निकलेगी। टेल से बीच वाला हिस्सा और सर निकलेगा। ऐसे ही 1 से 3 प्लेन एरिया हो जाएंगे। सो ये था रीजनरेशन। अब देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग कैसे होता है? जैसे कि एक बर्ड जैसा कोई एक हाइड्रा है, वैसे ही इसमें जैसे दिखा है बर्ड, ये एक बर्ड है। वो बर्ड में से एक पूरा ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म निकलता है और पूरा न्यू जनरेट हो जाता है और वैसे का वैसा ही बनता है। उसको कहते हैं बर्डिंग, मतलब बर्ड में से जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं बर्डिंग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। There are many plants in which part like root, stem, leaves develop into new plants under appropriate condition. Unlike in most animal, plant can indeed use such as a mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose, or grapes. For agricultural purpose, plant raised by vegetative propagation can bear flowers and fruit easily earlier than those product from a seed. मतलब एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? तो ये एग्जांपल दिया है, जैसे शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। तो उसके पहले एक प्लांट होता है, उसको उसको ऊपर से कट किया जाता है और उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो वहाँ से एक और प्लांट ग्रो हो जाता है। तो एक प्लांट से 2 प्लांट ग्रो हो गए। रोज़ का एक अच्छा सा एग्जांपल है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। Peer growth.
Choose a healthy and established plant to take the cuttings. Use sharp tools to cut the cuttings. Make 5 to 6 inch long cuttings. Remove all the leaves from the cuttings and make a 45-degree angle cut at the bottom. तो आपने देखा यहाँ पर रोज़ के बहुत सारे ऐसे स्टेम्स काटे 5-6 जैसे, और उसमें से 45 डिग्री एंगल पे ये कट्स लगाए ऐसे 45 डिग्री, और उसको बाद में अब ग्रो कर देना है डायरेक्ट सॉइल में। तो इससे वो प्लांट पूरा फिर से ग्रो हो जाएगा। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। So now let us see our sixth part। पर उससे पहले हम देखते हैं हमारी एक्टिविटीज। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस। कैन नोच बी सीन। एक पोटैटो लो और उसकी सरफेस को देखो। क्या उसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो प्लांट ग्रो हुआ है, मतलब अब उसको उस पोटैटो को हम सॉइल के अंदर डाल के वो रोज़ वाटरिंग करेंगे तो उसके अंदर से पोटैटोज़ का प्लांट हो जाएगा। वैसा वाला उस पर थोड़ा इसमें जैसे बर्ड दिख रहे वैसे ही उस पोटैटो के ऊपर ऐसे बर्ड्स हो गए। Cut the potato into small piece such that some piece contain a notch of bird। एक वो पोटैटो को स्मॉल पीसीस में कट कर देना है, और वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि वो पोटैटो के अंदर ऐसे बर्ड आने चाहिए, एक ऐसा बर्ड आना चाहिए। स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे। एक ट्रे के ऊपर थोड़ा कॉटन स्प्रेड कर देना है और उसे गीला कर देना है। प्लेस द पोटैटो पीसीस ऑन द कॉटन। और अब उस कॉटन के ऊपर पोटैटो के पीसीस रखने हैं। नॉट वेयर द पीस ऑफ पोटैटो पीस विथ अ बर्ड आर प्लेस्ड। उसे मार्क कर दीजिए जहाँ पे बर्ड है वो। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द पोटैटो पीस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब उसको बहुत 5-6 दिन तक ऑब्जर्व करते रहना है कि वो बर्ड ग्रो होता है कि वैसे का वैसा ही रहता है या क्या होता है, इसको ऐसे ऑब्जर्व करते रहना है। मेक श्योर दैट कॉटन इज़ केप्ट मॉइस्चर। और हमें जो कॉटन है उसमें से पानी निकल देने नहीं देना है, मतलब उसे मॉइस्ट रखना है। Which are the potato peas that gives rise to a fresh green shoot and root। अब जो हमने जो पोटैटो कट किए थे उसमें से बहुत सारे पोटैटोस है जो शूट्स और रूट्स, उसमें शूट्स और रूट्स ग्रो हो गए होंगे। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉच along the leaf margin of Bryophyllum fall on the soil and develop into new plant। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बर्ड है उसके ऊपर शूट्स और नीचे रूट्स ग्रो होते हैं और फिर वो लीफ के ऊपर से गिर जाते हैं नीचे और वो सॉइल में मिल जाते हैं, और ये जो रूट्स है वो ग्रो होना चालू कर देते हैं और ये नया प्लांट बना देता है। एक्टिविटी 8.6। सिलेक्ट अ मनी प्लांट। एक मनी प्लांट लो। कट सम पीस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट 1 लीफ। थोड़े ऐसे पीस लो मतलब स्टेम आनी चाहिए और उसके अंदर एक लीफ होना चाहिए। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन 2 लीव्स। और जो 2 लीव्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको भी थोड़ा लेना है। डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब वो जो एंड्स थे ये ऐसा होगा, इस तरह से ऐसे लीफ होगा मनी प्लांट का, और अब ये जो है उसको वाटर में रखना है और 5-6 बहुत सारे दिन तक उसको मतलब देखते रहना है, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करना है। विच वन ग्रोस एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स। अब उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे तो इसके ऊपर भी लीव्स आ गए होंगे, साइड में भी,
ऐसे लीव्स बहुत सारी जगह पे आ गए होंगे। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, उसमें से क्या कंक्लूजन मिलता है? तो ये ही कि कोई भी प्लांट ग्रो कर सकता है, मतलब कुछ कुछ प्लांट ग्रो कर सकते हैं उसके स्टेम से। तो हमारा 6th टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। ये एक राइजोपियस का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो ऊपर कुछ स्पोर्स है और ये एक डंडी जैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो कनेक्टेड है। Even in many simple multicellular organisms, specified reproductive parts can be identified. The thread-like structure that develop on the braid in activity 8.2 above are hype of the braid mold. हमने जो एक्टिविटी 8.2 देखी थी उसके अंदर जो ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का था वो ये स्पोर्स फॉर्मेशन था। उसके ऊपर जो ब्लैक था वो स्पोर्स थे। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लोब ऑन अ थिक स्ट्रक्चर आर इवॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। The blobs or sporangia, which contain cells or spores that can eventually develop into a new rhizopious individual. आप इधर देख रहे हो उसमें जो ये स्ट्रक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरा ये राइजोपियस फिर से फॉर्म करने के लिए। अगर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे किसी भी ब्रेड के ऊपर रख दोगे आप और उसको थोड़ा मॉइस्ट रख के आप कूल ड्राई प्लेस पे रख दोगे तो आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे हो गए होंगे। तो क्या कंक्लूड करते हो आप कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो राइजोपस में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ही पूरा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to create a single individual. This is known as asexual reproduction. हमने अभी तक जितना पढ़ा था वो सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, वो asexual reproduction थे। So guys, this is all for today. In the next video, we will learn sexual reproduction. So thank you and have a nice day. If you like my video, please like, share and subscribe.